Desai. JNK as of now is passing through an inflection moment in terms of its economic transformation, and it is what entities like World Bank would classify as a frontier market. In this, and I'll explain that by what World Bank means by the term frontier market. So it is basically a frontier market would be an area, typically a state or a nation, where it had gone through a long period of low development, and now it is at the cusp of positive transformation, which has come by through a series of reform steps that have been implemented. Now, why that is interesting for investors is that if one is careful about choosing good partners and one is careful about how one invests in these areas, then the opportunities for growth and development are unprecedented. Commerce, power department, JNK में it has been being run by the 4 of the corporations. JKPCL, which is the holding company, and under this we are having 4 subsidiaries: Jammu and Kashmir Power Development Corporation, Jammu and Kashmir Power Transmission Corporation, and 2 DISCOMs: Jammu Power Distribution Corporation and Kashmir Power Distribution Corporation. Till now we are functioning in quite basically, though we are made separate corporations and supposed to be independent, but still we are running under the guidance of department of means power department only. But recently we are taking basically steps to make the corporations more financially and basically independent, so that we can provide better service to our consumers. I was going through the itinerary, and all of the sessions are very relevant for the growth and future prospects of Jammu City. Sai Saab has been kind enough to provide us the platform जहाँ पे हम लोग आपके साथ नए म्यूनिसिपल बायलॉज के अमेंडमेंट्स को डिस्कस कर सकें. My colleague Manoj will discuss them in great detail in his presentation, and even after the session, if there are any requirements of clarification and all, those can be taken. So, for a very long time, our residential areas have been locked up because of the stringent bylaws, and a lot of potential of basic housing, group housing also, has not been able to go ahead. Now with these new bylaws, the concept of coverage has gone. So there is no concept of how much coverage is required in a plot. And all that you have to do is, you have to ensure that your front setback is there. That of course depends on the building line, on the basis of your road width. And then any one of the sides you have to maintain a setback. इस तरह के चेंजेस बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि हम देखते हैं इवन छोटे छोटे घरों में हम लोगों को परेशान करने पड़ता है कि आपके यहाँ पे सेटबैक्स नहीं बने, या आपने इतना कवरेज रखा इतना नहीं रखा. एंड मेनी टाइम्स पीपल कम टू अस सेइंग कि सर माई मेकिंग हाउस इन 5 मरला, सो मैं अगर ये सेटबैक इतना नहीं बना के इतना भी बना दूंगा तो किसी के घर पे या किसी के डेवलपमेंट पे क्या फर्क पड़ जाएगा. विच आर वेरी वैलिड पॉइंट्स. तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए नए बिल्डिंग अमेंडमेंट्स आए हैं, यूबीबीएल आया है, और हमारे को पूरी उम्मीद है दैट द लोकल पीपल एज वेल एज द बिजनेस कम्युनिटी. देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट हर दिन उस बेहतरीन हो रहा है, और ये जो कार्यक्रम आज हमने आयोजन किया है, इसमें इन्वेस्टमेंट्स और इंडस्ट्रियल क्लाइमेट के बारे में चर्चा होंगी. और एवरी डे द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन द स्टेट इज ऑलरेडी शोइंग अ पॉजिटिव ट्रेंड.
देखिए, बिजनेसमैन को सपोर्ट तो मिल ही रहे और स्टेट का जो ग्रांट्स एक्सेट्रा है उसका भी एक्सेस मिल रहा है। एंड होल आइडिया इज, देखिए नेशनल चेंबर्स जैसे आईसीसी आज यहाँ पे रेगुलरली आ रहा है, कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इसके मतलब सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी इज एग्जिस्टिंग इन द स्टेट। देखिए बजट तो, देखिए कोई भी सरकार जो सत्ता में रहते हैं वो इंडस्ट्री के हित में ही और जनता के हित में ही काम करते हैं। आई हैव अ फिलोसॉफी, आई नेवर फील दैट एनी गवर्नमेंट इज एंटी पीपल। Government always do things in the interest of the people. Sometimes the decisions are not acceptable, sometimes it becomes largely acceptable, but intention जो सरकार की होता है, कोई भी सत्ता में है एक डेमोक्रेसी में, उसका इंटेंशन है अच्छा करो। देखिए आज तो काफ़ी लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए हैं, बाहर से भी कुछ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट है जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या उनका यहाँ पे प्रोडक्ट्स उनका प्रमोशन करने के लिए, और लार्जली लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैज कम। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। विक्रमजीत सिंह जो हमारा कमिश्नर इंडस्ट्रीज आज का कार्यक्रम का चीफ गेस्ट है। इसके बाद म्यूनिसिपल बाईलॉज के ऊपर चर्चा होगा, उसके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो कमिश्नर है वो भी आ रहा है। पावर के ऊपर चर्चा होगा, जम्मू एंड कश्मीर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्टमेंट्स इन पावर, सो उसके लिए भी पावर डिपार्टमेंट से सीनियर आईएएस ऑफिसर राहुल यादव जी आ रहे हैं। तो इट्स अ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। ये सब चर्चा जब एक डेमोक्रेसी में होता है, इसके मतलब है दैट द स्टेट इज मूविंग फॉरवर्ड। भरोसा रखो स्टेट के ऊपर, स्टेट इज ओनली टर्निंग आउट टू बी बेटर विथ ईच पासिंग डे। देखिए, ये आज बड़ा मुबारक दिन है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू चैप्टर के लिए, जेएंडके के लिए। ये आज वी आर डूइंग राइजिंग जम्मू एंड कश्मीर प्रोग्राम 2.0 जो दूसरी बार हो रहा है। पहला इसका वर्जन कश्मीर में हुआ था और वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे हुआ था, और आज हम जो कर रहे हैं वो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकॉनमी पे कर रहे हैं। इसमें जो आज मुख्यतः टेक्निकल सेशंस हैं उसमें अगर मैं बात करूं तो एक म्युनिसिपल बायलॉज पे डॉक्टर दिव्यांश यादव जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं वो उसको हेड करेंगे सेशन को, और वो सेशन वो कर रहे हैं जिसमें आर्किटेक्ट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट जो है उनके ऑफिस बेरर्स भी उनके साथ बैठेंगे, हम लोग होंगे। और आप देखेंगे कि बायलॉज पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, जो नए बायलॉज आए हैं उसको समझाना भी है और उसमें जो दिक्कतें हैं उसको दूर भी करना है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन जो इसमें है, टोटल 4 सेशन है। दूसरा जो सेशन है वो है पावर पे। पावर में राहुल यादव जी जो आईएएस हैं, जो स्पेशल सेक्रेटरी पावर हैं, वो आ रहे हैं और वो उसको हेड करेंगे। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो फर्नेसेस को 10 रुपये पर यूनिट रेट कर दिया गया है, उसके बारे में वो थोड़ा बताएंगे कि क्या और विकल्प हैं फर्नेसेस के लिए। जो पावर इंटेंसिव यूनिट हैं, जो बड़े यूनिट हैं, वो कैसे बाहर की स्टेट से सोलर पावर परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत सस्ती है, 2-2.5 रुपये 3 रुपये के यूनिट मिलती है। 2 ये सेशन है, और फिर इनॉग्रल जो हमारा सेशन है उसमें तीनों रहेंगे, राहुल यादव जी, श्री विक्रमजीत सिंह जी जो इंडस्ट्री सेक्रेटरी हैं, और दिव्यांश जी, और हम रहेंगे और इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। पहला हमारा जो सेशन है वो बैंकिंग पे और स्टार्टअप्स पे है, जिसमें प्रोफेसर अलका हैं, संदीप शर्मा जी हैं आईसीआईसीआई बैंक से, जेके बैंक से सोहेल जी हैं, और आरुष जी हैं स्टार्टअप एसोसिएशन से। तो ये सारे पैनलिस्ट इसमें हैं। तो ये एक अपने आप में इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जो राइजिंग जम्मू एंड कश्मीर जिसकी हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर राइज करे, उस पर आज हमने ये प्रोग्राम किए हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है वो है आईटी इंडस्ट्री पे, जिसमें एक आईटी इंडस्ट्री आरवीएस ग्लोबल जो यहाँ पे काम कर रही है वो अपने बारे में बताएगी कि क्या दिक्कतें हैं उनको, कैसे वो आगे चल सकते हैं, और वो उसके बारे में जो है लोगों से बात करेंगे। उन्होंने यहाँ 300-400 लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, बाईपास पे उनका यूनिट है। और एक कैलकाटा से मिस रिमझिम आई हैं, वो भी आईटी एंटरप्रेन्योर है, हमारे बीच में है। वो बताएंगे कि क्या नई चीज़ें जेएंडके में आईटी में की जा सकती हैं। देखिए, बूस्टअप तो हमारी सारी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक्टिविटीज़ बूस्टअप के लिए हैं। अब ये लोगों पे भी डिपेंड करता है, हम सबको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हर सेक्टर को। आप देखेंगे यहाँ हर एसोसिएशन से ऑलमोस्ट लोग हैं, और हर बाज़ार से लोग हैं, हर सिविल सोसाइटी प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं। हम यही कोशिश करते हैं कि वो इनसे सीखें और अपने जो तरीके हैं उसमें चेंज लाएं। जैसे हम देख रहे हैं कि नए बिज़नेस जो हैं वो शुरू हो रहे हैं, और जो ट्रेन जा रही है कश्मीर जम्मू का बिज़नेस जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। तो ये नए विकल्प हैं जिसमें लोगों को जाने की ज़रूरत है। बाकी लोगों पे है कि वो उसको कैसे लेते हैं। Yes, sir. And this side. Yes.